Hello everybody. Again, I am coming back to my channel Osit Sarikomania. I am Osit Kumar Patnaik, and today's video I will discuss saving function or propensity to save, or also I will discuss the technical aspects of saving function. It is APS, average propensity to save, and marginal propensity to save. Then I will discuss equation of the saving function. It is the most important part of the Keynesian theory of income output and employment. So, namaskar to all of my friends. मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे मैं और अच्छा वीडियो लाऊंगा। तो मुझे कमेंट एटलीस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो में क्या कमी है। प्लीज़ कमेंट मी so that I will detect in which area I am having lacking. Then on that area I will work, and again I bring some videos according to your need and according to your requirement. So आज इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। फर्स्ट मैं सेविंग का डेफिनेशन बोलता हूँ। जस्ट आई वांट टू क्लैरिफाई सेविंग। इट इज एन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एंड अबव कंजप्शन। इट इज कॉल्ड सेविंग। जब इनकम कंजप्शन से ज़्यादा होता है तब सेविंग और बचत हमको प्राप्त होता है। When income is more than the consumption, then we can obtain saving. We know that income split up into two parts. It is consumption and saving. So Y is equal to C plus S. Income is equal to consumption plus saving. So saving is equal to income minus consumption. Means S is equal to Y minus C. So S is equal to Y minus C. It means saving is when हमको डेफिनेशन सेविंग का देना है, तो इट मीन्स when income is it is excess of income over and above consumption. इट मीन्स इनकम कंजप्शन से कितना ज़्यादा है वही बचत है। देन हम चलेंगे सेविंग फंक्शन। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सो सेविंग डिपेंड अपॉन इनकम। ऑलवेज सेविंग इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनकम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, वी नो दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस then saving increases, and vice versa. It means there is a positive relationship between income and saving. There is a direct relationship between income and saving. So saving function and propensity to save both are same thing. Alternate name of saving function is propensity to save. But जब हम प्रोपेंसिटी टू सेव का डेफिनेशन देंगे, when suppose we want to give the definition of propensity to save refers to a schedule which shows the different level of savings at different level of income in an economy. प्रोपेंसिटी टू सेव एक शेड्यूल है जिसमें डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में हमको डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग प्राप्त होता है। ओके, इट इज अ शेड्यूल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, विच शोज द सेविंग at the corresponding level of income, but which shows the different level of savings at different levels of income in an economy.
So there is no difference between saving function and propensity to save. Both the concepts are same. So ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, लाइक कंजप्शन, जैसे इनकम कंजप्शन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था, वैसा ही देयर इज डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग. व्हेन इनकम इंक्रीजेस देन सेविंग इंक्रीजेस and vice versa. Clear? You see the saving schedule. See the saving schedule. In saving schedule, when income is zero, consumption is 40 crores. It is autonomous consumption, and at that time saving is minus 40 crores. So negative saving, it means it is dis-saving. Okay? Negative saving is called dis-saving. It means when saving is negative 1, then this saving is called dis-saving. So here income is 0, consumption is 40 crores and saving is minus 40. It is called dis-saving. So consumption is more than income. So from which source people collect money to meet their needs? Okay, it means from past savings, or also borrow money from other sources. सो ये जो शेड्यूल में मेरा अज्यूम से जो शेड्यूल बना, इसमें एट एवरी लेवल इनकम इज इंक्रीज बाय 100 करोड़. इसमें इनकम को मैं 100 करोड़ बढ़ाया एंड कंजप्शन एट एवरी लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 80 करोड़. देन इजीली यू कैन गेट सेविंग, बिकॉज सेविंग इज इनकम माइनस कंजप्शन. क्योंकि ये जो सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव में हमको इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशन दिखाना है. ओके, सो बेसिकली इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन सेविंग फंक्शन वी मस्ट शो द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग. सो इनकम, कंजप्शन, सेविंग. ओके, सो आपको इनकम लेना है, कंजप्शन लेना है, देन सेविंग निकालना है. सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन. सो ये जो शेड्यूल है, हाउ टू रिमेंबर, व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर द टेबल? आपको ऑटोनोमस कंजप्शन लेना है. इट मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट दैट टाइम सेविंग इज -1, यू नो. देन एट एवरी लेवल कंजप्शन इंक्रीजेस बाय 100 crores and consumption increases by 80 crores. Okay, then easily you can get savings. Saving, it is income minus consumption. Okay, then you see when income is 200 crores, then consumption is 200 crores. It means income is equal to consumption. Then saving is 0. Then when income continuously increases, then you see saving also increases. When income increases, then saving increases. So there is positive relationship between income and saving. So average propensity to save, is a schedule, shows the different level of savings at the different levels of income over a period of time. इस शेड्यूल को हम propensity to save बोलेंगे, because it shows the relationship between income and saving. Okay, so from the schedule we have detected that when consumption is greater than income, then saving is -1. When saving is -1, this saving is called dis-saving. When income is equal to consumption, then saving is equal to 0. When income is greater than consumption, then saving is +1. Okay, when consumption, you see the table, when consumption is greater than income, saving is -1. When income is equal to consumption, saving is 0. You see, when income is rupees 200 crores, at that time consumption is 200 crores and saving is 0. Then when income greater than consumption, then at that time saving is +1. Clear? So same thing I have written here. When income greater than consumption, then saving is +1. And it is the most important one. When income increases, then saving increases, and vice versa. It means there is positive and direct relationship between income and saving. Okay, then just we draw the saving curve. Saving curve, it is the diagrammatic representation of saving schedule, propensity to save schedule. Diagrammatic representation of schedule. Okay,
diagrammatic representation of the saving schedule, it is saving curve. You see the curve here, you see saving curve initiate from negative portion of y axis. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, one question is coming. Okay, from which axis saving curve initiates? Saving curve initiates from the negative portion of y axis. क्यों? कारण क्या है? For what reason? Because at zero level of income, saving is negative 1. You see, when income level is 0, you see the schedule, consumption is 40 crores, it is autonomous consumption. At that time, saving is minus 40. Okay. So first you plot 0 minus 40. 0 minus 40 lies on the negative portion of y-axis. So saving curve initiate from negative portion of y-axis because at 0 level of income, saving is negative 1. Then you see, at point R you see saving is equal to 0. You see the diagram. When saving is equal to 0? When income is equal to consumption. जब इनकम कंजप्शन के साथ समान होगा तब सेविंग 0 होगा. You see the point R. The point when saving is equal to 0, the saving curve intersect x axis. The saving curve intersect income axis. It is the break-even point, you remember. One question is coming, very important one. Show the break-even point on the saving curve. Break-even point is the point at which income is equal to consumption and saving is equal to 0. In my previous video, already I have told, already I have explained how to detect break-even point on the consumption curve. Similarly here, how to detect break-even point on the saving curve. When saving curve intersect x-axis by income axis. So when saving curve intersect x-axis or income axis, then the intersecting point, then at the intersecting point is the break-even point. At the intersecting point, saving is equal to 0. You plot this one in the graph paper. Income 200 and saving 0. 200 0 you plot it. X coordinate is 200 and y coordinate is 0. You know that when y coordinate or ordinate is 0, then the coordinate point lies on what? X axis. When y coordinate or ordinate is 0, then the coordinate point lies on x axis. So here point R, in according to the schedule, it is 200 0. 200 0. So in this case, saving curve intersect x axis. Okay, at the point R. The point R is the break-even point where saving is equal to 0. That is to say, income is equal to consumption. Just to remember. Clear? So break-even here actually, in case of saving function, break-even point is the point at which saving is equal to 0. So break-even point is an intersecting point. Intersecting point, for what reason it is called intersecting point? Now here actually saving curve intersect income axis, x axis, okay, at a particular point, and this point is called the break-even point. Clear? And here you know in diagram x axis represents income and y axis represents saving. For what reason? We have taken, हम क्यों लिया इनकम को x एक्सिस में और सेविंग को y एक्सिस में? आपको पता होगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सभी समय y एक्सिस उसको रिप्रेजेंट करेगा और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा. तो इन सेविंग फंक्शन सेविंग डिपेंड अपॉन इनकम, तो सेविंग इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर दिस रीजन y एक्सिस रिप्रेजेंट इट and income is an independent variable, so x axis represent it. Then next one, beyond the point break-even point, you see continuously saving is positive 1. Saving is positive 1 means income is greater than consumption. But before break-even point, preceding of the break-even point के पहले आप देखिए डिसेविंग आ रहा है, it means saving is negative 1. It means consumption is greater than income. Clear? The same thing I have written here. Saving curve starts from point A on the negative portion of y-axis. Because at zero level of income, saving is negative 1. So in diagram, this saving is OS
or minus a, it is D saving minus a I have written, because autonomous consumption symbol is small a. So if autonomous consumption symbol is small a, then at the same zero level of income, what would be the D saving? It is OS, it is minus a. Here you see, when autonomous, you see the table. You see the table. When autonomous consumption is 40 crores, at that time, saving is minus 40. Na? So small a is 40, autonomous consumption symbol is 40, and at that time, D saving is minus 40. Clear? Same thing mentioned here. Okay. So in schedule, it is minus 40 crores. So saving curve intersect break-even point on saving curve. Already I have discussed. Saving curve intersect x-axis at point R, where saving is equal to 0. Okay, the point R is the break-even point. कोई पूछेगा सपोज ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग फंक्शन में ब्रेक इवन पॉइंट ना, इट इज द पॉइंट एट विच सेविंग इज इक्वल टू 0. तो सेविंग कर्व के ऊपर आप एक पॉइंट है जहां पर सेविंग 0 होगा, तो वो पॉइंट हमको कैसे प्राप्त होगा? हाउ कैन वी ऑब्टेन दिस पॉइंट? ना व्हेन द सेविंग कर्व इंटरसेक्ट इनकम एक्सिस और एक्स एक्सिस. ओके, देन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज एट दिस पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट वन, स्लोप के ऊपर हम थोड़ा देखेंगे. Here you see the diagram. What is the shape of the saving curve? Saving curve का shape क्या है? It is sloping upward from left to right. It is sloping upward from left to right. Reason is there is direct relationship between income and saving. There is positive relationship between income and saving. For this reason, slope of the saving curve is okay. It is upward. Shape of the saving curve is upward from left to right. क्लियर? सेम थिंग है रिटन. इसको पॉजिटिव सेविंग के बारे में बोल चुका हूँ. आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज +1 और बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज -1. एंड हियर यू सी द वन शेडेड पार्ट इज देयर. इट इज द डिसेविंग पार्ट. शेडेड पार्ट, डिसेविंग पार्ट, इट इज प्रेसीडिंग ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट के पहले है जहां पर सेविंग नेगेटिव है. ओके, सेविंग कब नेगेटिव होता है? जब कंजप्शन इनकम से ज्यादा होता है, व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम. और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आप देखिए सेविंग पॉजिटिव हो रहा है. क्लियर? इट मीन्स इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन. इसको मैं टेबल में, शेड्यूल में आपको देखा चुका हूं. अभी चलेंगे टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव. टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर देयर. ओके, टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन are average propensity to save and marginal propensity to save. Average propensity to save, it is APS, and marginal propensity to save, it is MPS. And second one, MPS, is the slope of the consumption curve. Clear? First I will discuss average propensity to save. So my friends, again just I remember to you, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए. एटलीस्ट तो लाइक तो कीजिए, कमेंट भी कीजिए. सो इसके वजह से आगे में जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें सुधार करके लाऊंगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके लाऊंगा. तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, टू सब्सक्राइब एंड कमेंट टू मी. अगेन जस्ट नाउ आई विल डिस्कस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, APS. मैं थोड़ा कंसाइज में बताना चाहता हूं जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है. ये क्या है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग. टोटल इनकम का कितना परसेंटेज हम सेविंग करते हैं, क्योंकि जो टोटल इनकम है उसका एक पार्ट कंजप्शन होता है और एक पार्ट सेविंग होता है. ओके, सो जो व्हाट इंडिकेट बाय APS, व्हाट शोज बाय APS. APS क्या शो करता है? APS क्या इंडिकेट करता है? ना, APS से हमको पता चलता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से पता चलता है कि हम टोटल इनकम का कितना परसेंटेज सेविंग के लिए यूज करते हैं. ओके, सो इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम में हमारा सेविंग कितना है और उसका रेशियो को लेंगे. इट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. APS इज इक्वल टू सेविंग बाय इनकम S/Y. ओके, देन यू कन्वर्ट टू परसेंटेज. इफ यू मल्टीप्लाई 100%, ओके,
So for example, you see if income is 100 crore and saving is 40 crore, then calculate APS. सपोज इनकम 100 करोड़ है, उससे सेविंग 40 करोड़ हुआ, और जो 60 करोड़ क्या होगा, कंजप्शन होगा. तो अभी हम एपीएस निकालेंगे. एपीएस व्हाट सोच बाय एपीएस. एपीएस से हमको क्या मिलता है कि एंटायर इनकम का कितना परसेंटेज हम सेविंग करते हैं. तो यहां पर हमको दिखाना है कि जो 40 करोड़ हम सेविंग कर रहे हैं वो टोटल इनकम 100 करोड़ का कितना परसेंटेज है, यही है. तो एपीएस आप निकालिए, एस बाय वाई, it is 0.4. 0.4 means 40%. It means 40% of total income used for saving. 40% of rupees 100 crore is equal to rupees 40 crore. हमारा टोटल इनकम रुपीज 100 करोड़ है. तो यहां पर एपीएस 0.4 और 40% आया. तो 40% ऑफ रुपीज 100 करोड़ इज इक्वल टू रुपीज 40 करोड़. इट मीन्स 40% of total income used for saving and other 60% of total income used for consumption. Clear? So APS यही शो करता है कि टोटल इनकम का कितना परसेंटेज सेविंग के लिए यूज होता है. क्लियर? और एक क्वेश्चन देखो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज 1000 करोड़, कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन, फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. आपको एपीएस निकालने के लिए आपको सेविंग निकालना है. यहां पर इनकम दिया है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, तो आप सेविंग निकाल दो. इनकम माइनस कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग. तो यहां पर इनकम दिया है, इनकम का सिंबल वाई है, कंजप्शन का सिंबल सी है. इनकम रुपीज 1000 करोड़, कंजप्शन रुपीज 750 करोड़. देन आप सेविंग निकाल दो, वाई माइनस सी, इट इज 1000 माइनस 750, इट इज रुपीज 250 करोड़. देन कैलकुलेट एपीएस. एपीएस इट इज एस बाय वाई, इट इज 0.25. okay. So 0.25 means what APS indicates or what APS shows? It means 25% of the total income used for saving. Here total income is 1000 crore. So 25% of rupees 1000 crore used for saving. Saving is rupees 250 crore. It means rupees 250 crore is 25% of rupees 1000 crore. Okay. Clear? So it indicates that 25% of income used for saving. So बहुत इंपॉर्टेंट है जो एपीएस है, हम एंटायर इनकम का, बट टोटल इनकम का कितना परसेंटेज हम सेविंग के लिए यूज करते हैं वही वो शो करता है. वो एक शेड्यूल हम देखेंगे. वैसे ही जो कॉमन शेड्यूल है, मैं बार बार बताया कि आप वाई सी और एस, इनकम कंजप्शन देन सेविंग निकाल दो. सेविंग वाई माइनस सी, देन एपीएस एस बाय वाई, और रुपीज इन करोड्स लेना है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स यू नो दैट इट इज रिलेटेड टू द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट. ओके, डोंट कंसिडर एनी इंडिविजुअल इनकम. सो रुपीज इन करोड्स. ओके, सो यू कंसिडर द इनकम एज ए होल, इनकम ऑफ द पीपल. ओके, इनकम ऑफ द पीपल इन होल इकोनॉमी. सो यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन रुपीज 40 करोड़ है. एट दैट टाइम सेविंग इज -40. देन हाउ टू ड्रॉ द टेबल, व्हाट इज द ट्रिक. मैं बार बार बता चुका हूँ कि आपको सभी समय इनकम को कितना बढ़ाना है, रुपीज 100 करोड़ बढ़ाना है और कंजप्शन को 80 करोड़ बढ़ाना है. मगर यहाँ पर रिमेंबर करना है, मेरा जो अजम्पशन है जीरो लेवल ऑफ इनकम में मैं ऑटोनोमस कंजप्शन 40 करोड़ ले लिया, तो तब हमारा सेविंग -40 करोड़ होगा. देन आपको इनकम इंक्रीज बाय रुपीज 100 करोड़. ओके, इन ईच एंड एवरी टाइम इनकम इंक्रीज बाय रुपीज 100 करोड़ एंड कंजप्शन इंक्रीज बाय रुपीज 80 करोड़. Then according to this you calculate saving. Okay, you see the APS, when income increases then APS also increases. It is very important one. So first APS का वैल्यू देख लो. APS नेगेटिव हो सकता है क्योंकि जब सेविंग नेगेटिव होगा, क्या न्यूमरेटर में क्या है, सेविंग है. इनकम तो कभी नेगेटिव नहीं होगा. सेविंग नेगेटिव होगा कि नहीं, सेविंग नेगेटिव होगा. सेविंग कब नेगेटिव होगा ना, व्हेन कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम. हो सकता है हमारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो हमारा इनकम से ज्यादा हो सकता है, तो एपीएस कैन बी -1. व्हेन एपीएस इज -1 ना, व्हेन सेविंग इज -1. व्हेन सेविंग इज -1 ना, व्हेन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम. सेविंग कब नेगेटिव होगा, जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होगा. एपीएस 0 भी हो सकता है क्योंकि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन. हमारा एंटायर इनकम को हम कंजप्शन के लिए यूज करेंगे, तो एंटायर इनकम इज यूज्ड फॉर कंजप्शन. एंटायर इनकम कन्वर्टेड टू कंजप्शन, देन एट दैट टाइम सेविंग इज इक्वल टू 0. और जब सेविंग 0 होगा ऑटोमेटिकली एपीएस 0 होगा.
क्योंकि एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस बाई वाई, न्यूमरेटर में क्या है, सेविंग है, इफ सेविंग जीरो होगा तो एपीएस जीरो होगा। देन नेक्स्ट वन, व्हेन सेविंग इज पॉजिटिव वन, यू सी सेविंग इज पॉजिटिव वन व्हेन इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन, जब इनकम कंजप्शन से ज्यादा होगा तब सेविंग पॉजिटिव होगा। जब सेविंग जब पॉजिटिव होगा तब एपीएस का वैल्यू मोर देन जीरो होगा। मगर याद रखना एपीएस का वैल्यू कभी भी वन नहीं होगा, क्योंकि एपीएस का वैल्यू कब वन होगा ना, जब एंटायर इनकम इज कन्वर्टेड इनटू सेविंग, व्हेन एंटायर इनकम इज यूज्ड फॉर सेविंग। मगर ये संभव नहीं है, हमारा एंटायर इनकम को हम सेविंग के लिए यूज करेंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, हाउ कैन वी सस्टेन आवर लाइफ, ये तो नहीं हो सकता, एंटायर इनकम को हम बचत नहीं करेंगे। तो कभी भी एपीएस का वैल्यू वन नहीं होगा। एपीएस का वैल्यू इसीलिए वन नहीं होगा क्योंकि कभी भी हमारा एंटायर इनकम सेविंग के लिए यूज नहीं होता है। एट एनी टाइम द एंटायर इनकम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेविंग। क्लियर? तो इसीलिए एपीएस का वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा, जीरो होगा और मोर देन जीरो होगा। अब याद रखना एपीएस का वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि सेविंग नेगेटिव हो सकता है, और एपीएस जीरो होगा क्योंकि सेविंग जीरो होगा। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट में एपीएस क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा सेविंग जीरो है, वहां पर एपीएस जीरो होगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीएस। सो व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? इट इज द पॉइंट एट विच सेविंग इज इक्वल टू जीरो, and this point actually related to the saving function. Break even point lies on x axis or income axis. Lies on x axis or income axis means saving curve intersect x axis or income axis at the point at which saving is equal to zero, and this point is the break even point. और आपको याद रखना है ब्रेक इवन पॉइंट में एपीएस जीरो होगा क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में सेविंग जीरो है। क्लियर? तो एपीएस का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और मोर देन जीरो हो सकता है, मगर एपीएस का वैल्यू कभी भी वन नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक दैट वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी वन, ट्रू और फॉल्स? You must have given reason, otherwise mark is not awarded. So in this case actually APS value never be 1. The value of APS never be 1 because entire income cannot be used for saving. Entire income को हम सेविंग में यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ये संभव नहीं है। एंटायर इनकम को हम सेविंग के लिए यूज कर देंगे तो फिर कंजप्शन हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारा नीड्स को हम कैसे पूरा करेंगे? हाँ, तो इसको आपको वैल्यू के ऊपर में बता दिया। तो वही चीज में बताया, एपीएस इज नेगेटिव वन, कब एपीएस नेगेटिव होता है और कब एपीएस जीरो होगा और कब एपीएस पॉजिटिव होगा। और एक मजा बात है, जब इनकम बढ़ता है एपीएस बढ़ता है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीएस इंक्रीजेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। जब इनकम बढ़ता है तब एपीएस बढ़ता है, इसका कारण मैं बता रहा हूं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग to save more percentage of income when continuously income increases. हमारा जो टेंडेंसी है, आप साइकोलॉजिकली आप देख लो, हमारा जो टेंडेंसी है, हमारा जब इनकम कंटिन्यूसली बढ़ता है, हम इनकम का ज़्यादा भाग हम सेविंग करेंगे और कम भाग हम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस इनकम इंक्रीज होने से हमारा जो नीड्स है वो पूरा होता जाएगा। ओके, हमारा जो मैक्सिमम नीड्स है वो पूरा हो जाएगा। तब क्या होगा, हम जब कंटिन्यूसली इनकम बढ़ता जाएगा तब हम उसका ज्यादा पर्सन हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। ओके, सो व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीएस इंक्रीजेस। रीजन इज इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू सेव मोर परसेंटेज ऑफ इनकम, टू सेव मोर परसेंटेज ऑफ इनकम, ओके, विथ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन इनकम। ओके, when income of the people continuously increases, then people save more percentage of their income and consume what, less percentage of their income, because due to continuous increase in income people have fulfilled their maximum needs. So due to continuous increase in income they want to save more percentage of the income and consume less percentage of the income. क्लियर? तो यही चीजें एपीएस राइजेस विथ इंक्रीज इन इनकम,
जब हम डायग्राम में एपीएस को दिखाएंगे, वन थिंग रिमेंबर, कोई भी पॉइंट पर, सेविंग कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट पर हम एपीएस को दिखा सकते हैं। और वन थिंग यू रिमेंबर, एपीएस कैन बी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑन द सेविंग कर्व। हम सेविंग कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, वहां पर हम डिटेक्ट करेंगे कि इनकम, लेवल ऑफ इनकम क्या है, और उसी लेवल ऑफ इनकम में हमारा सेविंग कितना होगा। तो यू सी वन पॉइंट, इट इज पॉइंट ए ऑन द सेविंग कर्व एसएस, saving curve is SS, it means I have taken point A. So at point A, income is OI1 and saving is OR. So APS is, it is saving by income, it is equal to OR by OY1. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब APS हम मेजर करेंगे तो सेविंग कर्व के ऊपर एक पॉइंट में हम APS को मेजर करेंगे, और उसी पॉइंट में हमको देखना है कि इनकम लेवल क्या है और सेविंग कितना है। सो ऑलवेज APS represents at a point on the saving curve. So okay, at this point we detect what is the income level and what is saving, then easily we can calculate APS. So same चीज in diagram, SS is the saving curve, APS at point A on the saving curve SS, it is OR by, again आप चेक कर लो, OR by OY1. clear? Then properties ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वो शेड्यूल में। एपीएस कैन बी -1, जब सेविंग नेगेटिव होगा तब एपीएस नेगेटिव होगा। एपीएस कैन बी 0 व्हेन सेविंग इज इक्वल टू 0, सेविंग जब 0 होगा एपीएस 0 होगा। एपीएस कैन बी पॉजिटिव एंड लेस देन 1 व्हेन सेविंग इज +1, जब सेविंग पॉजिटिव होगा तब एपीएस पॉजिटिव होगा। ओके, पॉजिटिव मीन्स मोर देन 0। एपीएस कैन नेवर बी 1, एपीएस का वैल्यू कभी 1 नहीं होगा और वो मोर नहीं होगा। क्यों? अच्छा, एपीएस, द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, कभी एपीएस का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, 1 से ज्यादा कैसे होगा? एस बाई वाई फॉर्मूला ना, जब सेविंग इनकम से ज्यादा होगा, व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इनकम देन एपीएस इज, वैल्यू ऑफ एपीएस इज ग्रेटर देन 1। कभी हो सकता है क्या सेविंग इनकम से ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो एपीएस का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। ओके, द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, बिकॉज सेविंग नेवर बी इक्वल टू इनकम। कभी भी सेविंग इनकम से इक्वल नहीं होगा। सेविंग इनकम से इक्वल होगा तो एपीएस का वैल्यू 1 होगा, मगर ये संभव नहीं है। एंड सिमिलरली ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, क्योंकि एनी टाइम सेविंग इज नॉट मोर देन इनकम, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज को आपको रिमेंबर करना है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप में हम देखेंगे जो एपीसी एपीएस 1 है। एपीसी, how much percentage of total income used for consumption, and APS, how much percentage of total income used for saving. So it must be 1. If APC is 0.4, then what would be APS? It is 0.6. हम entire income का 40% हम consumption expenditure के लिए यूज करेंगे, 40% consumption expenditure के लिए यूज करेंगे, तो it is APC है। 40% 0.4, then entire income का 60% क्या होगा? सेविंग होगा। So 60% of entire income, it is what? APS, it is 0.6, it is equal to 1. मैं बार बार बोला, इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम करेंगे और कुछ पार्ट हम सेव करेंगे। तो एंटायर इनकम का कितना परसेंटेज हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एपीसी है, और एंटायर इनकम का कितना परसेंटेज हम सेव कर रहे हैं वो एपीएस है। तो ऑलवेज एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1। इसका मैथमेटिकल प्रूफ में दे दिया। यू नो दैट इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। सो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सो डिवाइड y ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में आप y को डिवाइड कर दो, तो और 1 इज इक्वल टू सी प्लस एस बाई वाई, इट इज इक्वल टू सी बाई वाई प्लस एस बाई वाई। तो सी बाई वाई इट इज एपीसी एंड एस बाई वाई इट इज एपीएस। सो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, सो द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। क्लियर? इट इज एवरीथिंग अबाउट एपीएस। The next one, I am going to discuss marginal propensity to save, MPS. MPS is the slope of the saving curve. Okay, marginal propensity to save, it is the slope of the saving curve or slope of the saving function. तो जब MPC के बारे में मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। जब MPS आप निकालोगे, आप एंटायर इनकम नहीं लेना है, आपको देखना है इनकम में कितना चेंज हो रहा है।
और जितना इनकम में चेंज हो रहा है उसका कितना परसेंटेज हम सेविंग कर रहे हैं, हाउ मच। सो कंसाइजली मैं थोड़ा एपीएस को आपको बता रहा हूं। जस्ट आई वांट टू क्लैरिफाई वेरी कंसाइजली, ब्रीफली आई वांट टू क्लैरिफाई एमपीएस। हाउ मच परसेंटेज ऑफ चेंज इन इनकम বা हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इनकम और हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग। हमारा जो इंक्रीज इन इनकम है उसका कितना परसेंटेज हम सेव कर रहे हैं। सेम थिंग जो एडिशनल इनकम इंक्रीज इन इनकम सेम है, ये भी बोल सकते हैं हमारा एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज हम सेव कर रहे हैं। और चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज। सपोज मैं इंक्रीज लिया, अभी डिक्रीज नहीं लेंगे, ओके। जो चेंज है, चेंज इन इनकम, इट इज इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम। वैसे ही जितना इनकम चेंज हुआ उसका कितना परसेंटेज हम सेविंग के लिए यूज करेंगे, यही है एमपीएस। यहां पर एंटायर इनकम नहीं लेंगे, इनकम में जितना चेंज हो रहा है उससे चेंज का हम कितना परसेंटेज सेविंग के लिए यूज करेंगे। ओके, सो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ओके, द चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। आप एक यहां पर देख लो एक एग्जाम्पल, क्लियर। यहां पर एक एग्जाम्पल आप देख लो, चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम, इट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। Calculate MPS when income rises from rupees 100 crores to rupees 200 crores and corresponding saving rises from rupees 20 crores to rupees 80 crores। इनकम 100 करोड़ से 200 करोड़ को बढ़ रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग 20 करोड़ से 80 करोड़ को बढ़ रहा है, तब हम एमपीएस निकालेंगे। तो यहां पर आप इंक्रीज इन इनकम को निकाल दो, डेल्टा वाई को निकाल दो। कितना इनकम बढ़ रहा है, रुपीज 100 करोड़। कितना सेविंग बढ़ रहा है निकाल दो। ओके, कैलकुलेट इंक्रीज इन सेविंग, इट इज रुपीज 60 करोड़। देन कैलकुलेट एमपीएस, इट इज इंक्रीज इन सेविंग बाय इंक्रीज इन इनकम। एमपीएस इज इक्वल टू 0.6। 0.6 मीन्स इट इंडिकेट्स दैट 60% ऑफ इंक्रीज इन इनकम। यहां पर इंक्रीज इन इनकम कितना है, रुपीज 100 करोड़ से इनकम कितना बढ़ रहा है, रुपीज यहां पर दिया है डेल्टा वाई यूसी, रुपीज 100 करोड़। भाई जो इनकम जितना बढ़ रहा है उसका कितना परसेंटेज हम सेविंग कर रहे हैं, 60%। इट इंडिकेट्स दैट 60% ऑफ इंक्रीज इन इनकम और एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग। तो एमपीएस भाई शो करता है, व्हाट इंडिकेट्स एमपीएस, व्हाट शोज बाय द एमपीएस, इट शोज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम और चेंज इन इनकम और इंक्रीज इन इनकम यूज्ड फॉर सेविंग। सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, एमपीएस इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ चेंज इन इनकम यूज्ड फॉर सेविंग। तो जब शेड्यूल हम देखेंगे, हम शेड्यूल में एमपीएस का वैल्यू को कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि आप मैथमेटिकली जानते हो एमपीएस इज द स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन और सेविंग कर्व। तो हम जानते हैं कि जब स्लोप कांस्टेंट रहेगा तब क्या होगा ना, जो कर्व होगा वो स्ट्रेट रहेगा। तो यहां पर हमारा सेविंग कर्व अब देख चुका होगा, सेविंग कर्व सभी समय स्ट्रेट है। सो इसीलिए हम स्लोप को कांस्टेंट करेंगे, एमपीएस को सभी समय हम कांस्टेंट रखेंगे। जो टेबल में, जो एमपीएस शेड्यूल में थ्रू आउट द शेड्यूल द वैल्यू ऑफ एमपीएस ओके मस्ट बी कांस्टेंट वन। ये कांस्टेंट रहेगा तो तब सेविंग कर्व क्या होगा ना, स्ट्रेट होगा, क्योंकि एमपीएस इज द स्लोप ऑफ द सेविंग कर्व। सो इफ स्लोप इज कांस्टेंट वन, ओके, इफ स्लोप इज कांस्टेंट वन देन curve is straight one. You know that when slope increases then curve is concave like, when slope decreases then curve is convex like, when slope is constant one then curve is straight one. तो यहां पर जो सेविंग कर्व को हम स्ट्रेट रखने के लिए यहां पर क्या किया ना, एमपीएस को हम कांस्टेंट कर दिया। तो यहां पर वही है टेबल, आप जीरो ले जाओ, इनकम फर्स्ट जो रो है ऑटोनोमस कंजप्शन को 40 करोड़ ले जाओ, सेविंग -40, देन डेल्टा एस चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम, देन एमपीएस आपको निकालना है। मगर यहाँ पर एमपीएस कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए एट एवरी लेवल इनकम इज इंक्रीज बाय 100 करोड़ एंड कंजप्शन इंक्रीज बाय रुपीज 80 करोड़। आप इनकम कंजप्शन ले जाएंगे तो सेविंग निकल जाएगा, इजी है। तो यहाँ पर मैं बार बार बताया, आपको ऑटोनोमस कंजप्शन ले जाना है तब आपको डिस सेविंग मिल जाएगा, जीरो लेवल ऑफ इनकम में सेविंग मिल जाएगा। तब आप इनकम को at every time income increase by same amount means by rupees
100 crores in my table, and consumption increase by rupees 80 crores, then आप सेविंग निकाल दो। तब हमारा एमपीएस क्या होगा ना, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो इंक्रीज इन इनकम है वो 100 करोड़ रहा। ऑलवेज इनकम इंक्रीज बाय रुपीज 100 करोड़ एंड सेविंग इंक्रीज बाय रुपीज 20 करोड़, क्योंकि वहां पर हम क्या किया, कंजप्शन कितना बढ़ रहा है, 80 करोड़ बढ़ रहा है। ओके, आफ्टर ऑटोनोमस कंजप्शन आप कंजप्शन को 80 करोड़ बढ़ा दो। ओके, बाय रुपीज 80 करोड़ कंजप्शन कंटिन्यूसली, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, देन आपका सेविंग, ओके, इट इज इंक्रीज इन सेविंग, ओके, इट इज इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, इट इज रुपीज 20 करोड़, तब आपका एमपीएस क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा 0.20। इट मीन्स 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम यूज्ड फॉर सेविंग, क्योंकि 100 करोड़ का जो सभी समय आपका इंक्रीज इन इनकम है 100 करोड़ एंड इंक्रीज इन सेविंग है 20 करोड़, तो 20 करोड़ 100 करोड़ का कितना परसेंटेज है, 20% है। तो वही तो एमपीएस शो करता है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इनकम यूज्ड फॉर सेविंग। सो यहाँ पर सेविंग रुपीज 20 करोड़ सभी समय है और इंक्रीज इन इनकम 100 करोड़ से। तो इसको मैं समझाया कि एमपीएस क्यों हम कांस्टेंट लिया है। यहाँ पर एमपीएस इसीलिए कांस्टेंट लिया क्योंकि एमपीएस स्लोप है, स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन और सेविंग कर्व। स्लोप कांस्टेंट रहेगा, व्हेन स्लोप इज कांस्टेंट वन देन डेफिनेटली कर्व इज स्ट्रेट वन। तो वही चीज मैं यहाँ पर बताया। देखो यहाँ पर जब आप डायग्राम में ड्रॉ करते हो, सो हियर एक्चुअली आई वांट टू कैलकुलेट एमपीएस एट पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट बी, क्योंकि जो स्लोप है, स्लोप के बारे में थोड़ा बता रहा हूं। एमपीएस चेंज इन सेविंग मेनली डिपेंड अपॉन यूनिट चेंज इन इनकम। इनकम में जितना, इनकम में जब कुछ यूनिट चेंज होगा तब सेविंग में चेंज आएगा, वही स्लोप है। ओके, इट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। इट मीन्स हाउ टू रीड इट, इट इज चेंज इन सेविंग विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। तो एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, इट मीन्स चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम ना। तो हाउ टू रीड इट, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, इट इज चेंज इन सेविंग विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, बिकॉज जो चेंज इन सेविंग डिपेंड अपॉन चेंज इन इनकम ड्यू टू यूनिट चेंज इन इनकम। देन जब चेंज इन इनकम में कुछ यूनिट चेंज होगा, जब चेंज इन इनकम होगा तब हमारा सेविंग में चेंज होगा। तो यहां पर हम 2 पॉइंट्स में मेजर करेंगे, जो सेविंग कर्व के ऊपर हम 2 पॉइंट्स में मेजर करेंगे, मगर एपीएस एक 1 पॉइंट में मेजर कर रहे थे, यहां पर 2 पॉइंट्स में मेजर करेंगे। सो यू सी हम एमपीएस को पॉइंट ए में मेजर करेंगे। हम, इट मींस आई हैव टेकन 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड बी। ओके, बट वी कैन मेजर एमपीएस एट पॉइंट ए। सो हाउ टू मेजर, इट मींस एमपीएस एट पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट में आप देख लो आपका इनकम कितना चेंज हो रहा है और सेविंग कितना चेंज हो रहा है। तो इनकम कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा वाई y1 y2 चेंज हो रहा है, और सेविंग कितना चेंज हो रहा है ना, इट इज डेल्टा एस पी आर। तो एमपीएस पी आर बाई y1 y2, इसमें एक डिफरेंस हमको मिल गया। एपीएस है, जो एपीएस हम मेजर करते हैं, एपीएस रिप्रेजेंट्स एट ए पॉइंट ऑन द सेविंग कर्व। एपीएस रिप्रेजेंट्स एट ए पॉइंट ऑन द सेविंग कर्व, but MPS can be measured at 2 points on the saving curve, but APS can be measured at 1 point on the saving curve. Clear? The next one, in the schedule we have detected that value of MPS remains constant. schedule में हम देख चुके हैं at 0.20 थ्रू आउट द सेविंग फंक्शन। MPS का वैल्यू को हम कांस्टेंट ले लिया इसलिए क्योंकि सेविंग कर्व स्ट्रेट होगा। MPS measures the slope of saving curve. कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एमपीएस मींस दैट द सेविंग कर्व इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो एमपीएस है वो सेविंग कर्व का क्या है, स्लोप है। ओके, सो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एमपीएस मींस दैट द सेविंग कर्व इज स्ट्रेट वन। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। और डायग्राम में इट मींस एमपीएस एट पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी, इट इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, इट इज इक्वल टू पी आर बाय y1 y2। क्लियर? तो यहां पर हम जब स्लोप देखेंगे कि आप जानते हो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, और एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, चेंज ऑफ द वेरिएबल इन वाई एक्सिस बाय चेंज ऑफ द वेरिएबल इन एक्स एक्सिस। जो वेरिएबल वाई एक्सिस में रहेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है,
और जो एक्स एक्सिस में जो वेरिएबल रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम स्लोप निकालते हैं, इट इज चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय change of the independent variable on x axis. So here dependent variable is saving and independent variable is income. So it is delta s by delta y. Change of the dependent variable by change of the saving on y axis by change of independent variable income on x axis. Clear? Have you clear understood or not? तो अभी हम देखेंगे थोड़ा प्रॉपर्टीज में मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्चुअली वैल्यू ऑफ एमपीएस ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 and 1. नॉर्मली द वैल्यू ऑफ एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 and 1 और 2 एक्सेप्शन केस हम देखेंगे. सपोज एंटायर एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग, हमारा इनकम जितना बढ़ रहा है हम उसको पूरा बचत कर लेते हैं. एंटायर एडिशनल इनकम कन्वर्ट टू एडिशनल सेविंग. ओके जब हमारा एडिशनल इनकम को हम एडिशनल सेविंग कर देंगे तो हमारा एडिशनल कंजप्शन क्या होगा, 0 होगा. तब एमपीएस 1 होगा क्योंकि एमपीएस डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, तब एमपीएस 1. अगर ये संभव नहीं है, हम एंटायर एडिशनल इनकम को कभी सेविंग नहीं करेंगे. ओके एंटायर एडिशनल इनकम इज नॉट यूज्ड फॉर सेविंग. सिमिलरली second one you see, if entire additional income is used for consumption, it means delta y is equal to delta c, तब डेल्टा s 0 होगा, एडिशनल सेविंग 0 होगा. हमारा जितना इनकम बढ़ जाएगा उसको हम कंज्यूम कर देंगे. एंटायर एडिशनल इनकम कन्वर्ट टू कंजप्शन, देन एडिशनल सेविंग इज 0. ओके देन इन दिस केस एमपीएस इज इक्वल टू 0 होगा. मगर ये संभव नहीं है. हम जो एडिशनल इनकम होता है उसका कुछ पार्ट हम सेव करते हैं और कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं. Okay, part of the additional income used for saving and part of the additional income used for consumption. ये संभव नहीं है. तो ऑलवेज वैल्यू ऑफ एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 and 1. और एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट, जब इनकम कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम एमपीएस इंक्रीजेस. क्योंकि ये एक टेंडेंसी हमारा ह्यूमन बीइंग का है, जब हमारा कंटिन्यूअस हमारा सक्सेसिवली इनकम इंक्रीजेस देन ऑटोमेटिकली it is the tendency of the human being to save more percentage of additional income, to save more percentage of increase in income, okay, and less percentage of additional income used for consumption. तो ये हमारा टेंडेंसी है. विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम एमपीएस इंक्रीजेस. मगर मैं शेड्यूल में एमपीएस पूरा थ्रू आउट द शेड्यूल एमपीएस वैल्यू कांस्टेंट 1. क्यों कांस्टेंट हम लिए? क्योंकि एमपीएस क्या है, स्लोप है सेविंग फंक्शन का, और स्लोप कांस्टेंट रहेगा तब सेविंग कर्व स्ट्रेट होगा, इसीलिए लिए. मगर एक्चुअली एमपीएस कांस्टेंट नहीं होता है. विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम एमपीएस इंक्रीजेस. इसका कारण मैं बताया. ये विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम it is the tendency of the human being to save more percentage of additional income, to save more percentage of increase in income. ये हमारा जो टेंडेंसी है, हमारा जब इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा हम हमारा एडिशनल इनकम का ज़्यादा भाग क्या करेंगे, सेविंग करेंगे. एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप यहाँ पर है, एमपीसी एमपीएस 1 है. ये भी बहुत कॉमन चीज़ है. मैं बार बार बताया, जो एडिशनल इनकम है, एडिशनल इनकम का कुछ पार्ट हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए यूज करते हैं. जो हम एडिशनल इनकम का कुछ पार्ट हम यूज करेंगे वही है एमपीसी, और जो एडिशनल इनकम का कुछ पार्ट हम सेविंग करेंगे वही है एमपीएस. सपोज यू सी वन एग्जांपल, 40% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन, 40% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन. इन दिस केस एमपीसी इज इक्वल टू 40% by 0.4. Clear? Then 60% of additional income used for saving. यदि एंटायर इनकम का 40% एडिशनल इनकम का 40% हम कंज्यूम करेंगे तब एमपीसी क्या हुआ, 0.4. तब ऑटोमेटिकली एडिशनल इनकम का 60% हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे. तो वहां पर एमपीएस क्या होगा, 0.6. तो ये दोनों समान है. जो एडिशनल इनकम का कुछ परसेंटेज हम कंज्यूम करते हैं और कुछ परसेंटेज हम सेविंग करते हैं, इसलिए 1 होता है. 40% कंज्यूम करेंगे, एडिशनल इनकम का 40% कंज्यूम करेंगे तो एमपीसी 0.4 होगा. एडिशनल इनकम का 60% हम सेव करेंगे
तो एमपीएस क्या होगा, 0.6 होगा, तो 1 होगा ना। तो वही उसको मैथमेटिकली डेल्टा वाई चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग। हम जानते हैं जो एडिशनल इनकम है उसका कुछ पार्ट हम कंज्यूम करेंगे और कुछ पार्ट हम सेव करेंगे। सो डेल्टा वाई डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में डेल्टा वाई को डिवाइड कर देंगे। तो 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, और 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, इट इज एमपीसी, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, इट इज एमपीएस। सो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। और इक्वेशन में याद रखना एमपीसी का सिंबल हम जो कंजप्शन मेरा प्रीवियस वीडियो में बोला था, जो एमपीसी इट इज द स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन, उसका सिंबल स्मॉल बी था। तो एमपीसी का सिंबल स्मॉल बी है, तो एमपीएस का सिंबल क्या होगा, 1 माइनस बी, 1 माइनस स्मॉल बी। तो यहां पर थोड़ा डिफरेंस देखेंगे एपीएस एंड एमपीएस। ओके, तो फर्स्ट तो डेफिनेशन देना है, एपीएस इट रिफर्स टू रेशियो ऑफ सेविंग टू करेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, और सेकंड में वही एपीएस जो रेशियो में दे देंगे सिंबॉलिकली एस बाई वाई। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, एपीएस नेगेटिव हो सकता है। एपीएस कब नेगेटिव होगा ना, जब सेविंग नेगेटिव होगा। ओके, एपीएस कैन बी लेस देन 0 व्हेन देयर आर डिसेविंग। डिसेविंग क्या है, जब सेविंग नेगेटिव होता है। जब सेविंग नेगेटिव होगा तब हमारा एपीएस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हो सकता है। तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है। तो एपीएस इज प्रेजेंटेड एट ए पॉइंट ऑन द सेविंग कर्व। मैं बार बार बताया, सेविंग कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट में हम एपीएस को मेजर करते हैं। ऑन द सेविंग कर्व एट ए पॉइंट वी मेजर एपीएस। तो ये 4 पॉइंट दे दिया। सिमिलरली एमपीएस, यहां पर आप चेंज इन सेविंग, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम हमको लेना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंबॉलिकली मैं ले लिया एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। और वहां पर मैं बोला था एपीएस नेगेटिव हो सकता है, एपीएस नेगेटिव हो सकता है, और एमपीएस यहां पर कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एमपीएस क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। डेल्टा आइदर डेल्टा एस और डेल्टा वाई, कभी डेल्टा एस हो कि डेल्टा वाई हो, कभी नेगेटिव नहीं है। कोई भी एक नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव होगा, मगर कभी जो चेंज इन सेविंग है कभी नेगेटिव नहीं होगा, चेंज इन इनकम कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो एमपीएस एक्चुअली कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एमपीएस का वैल्यू आप जानते हो 0 एंड 1 के भीतर लाइज करता है। तो यहां पर वही दे देना है। वहां पर दिए थे हम क्या, in case of APS already we have detected that APS is negative 1, it means less than 0 when saving is negative 1, but in case of MPS can never be less than 0 or negative 1। MPS कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, because either delta S और delta Y is not negative 1, कि MPS is equal to delta S by delta Y। कोई भी एक नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव होगा, मगर कोई एक नेगेटिव नहीं है। चेंज इन सेविंग, आइदर चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम इज नॉट नेगेटिव 1। ओके, तो वहां पर दिए थे एपीएस केस में दिए थे ऑन सेविंग कर्व एपीएस इज मेजर्ड एट ए पॉइंट, एक पॉइंट में हम मेजर करते हैं, बट इन केस ऑफ एमपीएस इट इज मेजर्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। ओके, एमपीएस इज मेजर्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द सेविंग कर्व, एपीएस मेजर्ड एट 1 पॉइंट ऑन द सेविंग कर्व, सेम थिंग आई हैव रिटन। क्लियर? अभी हम थोड़ा इक्वेशन को जाएंगे। इक्वेशन को याद रखो, इक्वेशन ऑफ द सेविंग फंक्शन एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी होल इनटू आई। एस इज सेविंग, माइनस ए इज डिसेविंग, क्योंकि आपको याद होगा ऑटोनोमस कंजप्शन का सिंबल स्मॉल ए है। आप देखो इनकम जब 0 है, हमारा जो शेड्यूल में इनकम 0 है, ऑटोनोमस कंजप्शन 40 करोड़ से, तब डिसेविंग क्या होगा, माइनस 40 करोड़। तो ऑटोनोमस कंजप्शन का सिंबल ए है, तो यहां पर एट दैट टाइम डिसेविंग क्या होगा, माइनस 40 करोड़ एट 0 लेवल ऑफ इनकम। तो ऑटोनोमस कंजप्शन स्मॉल ए मीन्स, तो उस समय डिसेविंग क्या होगा, माइनस ए। और 1 माइनस बी, मैं बार बार बताया एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। यहां पर मैं देखो दे दिया, वी नो दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीसी का सिंबल हम क्या लिया, स्मॉल बी। एमपीसी इज द स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व और कंजप्शन फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली एमपीएस का सिंबल क्या होगा, 1 माइनस बी, क्योंकि एमपीसी एमपीएस दोनों ऐड होकर सभी समय कितना होता है, 1 होता है। तो जब एमपीसी का सिंबल स्मॉल बी है तब एमपीएस क्या होगा, 1 माइनस बी। सो एस इज इक्वल टू, व्हेन यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन, इट इज इक्वल टू डिसेविंग, and डिसेविंग मीन्स डिसेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम, डिसेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम प्लस स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन। स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन इट इज एमपीएस इनटू इनकम, याद रखना।
S is equal to saving is equal to, it is dissaving at zero level of income, it is minus A, plus MPS, a slope of the saving function or slope of the saving curve, slope is MPS into I. So 1 minus B है, क्या है वो MPS है और स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन का सिंबल है। क्यों है मैं यहाँ पर बता दिया, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 है और एमपीसी का सिंबल स्मॉल बी है, तब एमपीएस क्या होगा 1 माइनस बी होगा। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग, हाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ द सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन। हम कंजप्शन फंक्शन से हम कैसे सेविंग फंक्शन का इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर देख लो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। तो आप C है जो कंजप्शन इक्वेशन को याद रखो, यहां पर ब्रैकेट में दे दिया C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, कंजप्शन इक्वेशन, कंजप्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन स्मॉल b प्लस स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन इनटू इनकम। स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन इट इज एमपीसी, एमपीसी का सिंबल स्मॉल b है, इनटू इनकम। जस्ट यू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ द कंजप्शन फंक्शन, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस एमपीसी इनटू आई। तो यहाँ पर हम C का वैल्यू डाल दिया a प्लस बी वाई, क्योंकि हम कंजप्शन इक्वेशन हम जानते हैं C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो C का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया। ओके, तब आप निकाल दो, S निकाल दो, S इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी होल इंटू आई। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, हाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ द सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन। तो यहाँ पर एक दे दिया क्वेश्चन, आपको सेविंग निकालना है, ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है, ऑटोनोमस कंजप्शन का सिंबल ए है, एमपीएस दिया है, एमपीएस का सिंबल में बताया 1 माइनस बी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी और एमपीसी इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस एमपीएस, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस 1, एमपीएस का सिंबल 1 माइनस बी है और वाई आप ले लिया और इक्वेशन डायरेक्टली यू नो दैट माइनस ए प्लस 1 माइनस बी होल इंटू आई। यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन ₹200 करोड़, इट मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, देन आर डिसेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, इट इज माइनस है। Okay, it is minus 200 plus MPS is 0.4, it is given, it means 40% of additional income used for, but 40% of change in income used for what, saving into income है, तो आप सेविंग निकाल दो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज एमपीसी, हाउ इज रिलेटेड टू एमपीएस, बोथ एमपीसी एमपीएस 1 है, मैथमेटिकल रिलेशन दे दिया। द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, इज इट ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ एपीएस, बार बार बताया, कभी भी एपीएस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, क्योंकि एपीएस का सिंबल, आप फॉर्मूला को देखो, एस बाई वाई, कब ग्रेटर देन 1 होगा, जब सेविंग ग्रेटर देन इनकम होगा। व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इनकम देन वैल्यू ऑफ एपीएस इज ग्रेटर देन 1, मगर ये संभव नहीं है, कभी इनकम से सेविंग ज्यादा होगा क्या, तो ये फॉल्स है, आपको रीजन देना है। ओके, एट एनी टाइम सेविंग इज नॉट ग्रेटर देन इनकम, सो द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, आपको रीजन देना है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इसको देना है, 2 स्टेटमेंट दिया है, द वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये ट्रू है, एमपीएस का वैल्यू सभी समय 0 to 1 के अंदर में लाइज करता है। और एमपीएस का आप फॉर्मूला देखो, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, आइदर डेल्टा एस और डेल्टा वाई इज नॉट नेगेटिव 1, कोई भी एक नेगेटिव होगा तो एमपीएस नेगेटिव होगा ना, तो चेंज इन सेविंग, आइदर चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम इज नॉट नेगेटिव 1। एपीएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज नहीं, एपीएस का वैल्यू जो है, एपीएस नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और मोर देन 0 हो सकता है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एपीएस इज ऑलवेज नो, एपीएस कैन बी नेगेटिव 1, कैन बी 0 और मोर देन 0, ओके, ऑलवेज मोर देन, तो आपको वही रीजन देना है। डिफरेंशिएट एपीएस एंड एमपीएस विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, डेफिनेशन देना है और एक एग्जांपल देना है। आप देख लो, मैं एग्जांपल दे चुका हूं ऑलरेडी, डेफिनेशन एग्जांपल। हाउ इज एपीसी रिलेट विथ एपीएस, दोनों आड़ होके 1 होते हैं, ओके, जो एंटायर इनकम होता है, सो परसेंटेज ऑफ एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, मैथमेटिकल रिलेशन में दे चुका हूँ, ओके, क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस 1 मीन्स एंटायर इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम करेंगे और कुछ पार्ट हम सेव करेंगे। जो एंटायर इनकम का कुछ परसेंटेज हम कंज्यूम करते हैं वो एपीसी है, और जो एंटायर इनकम का कुछ परसेंटेज हम सेव करते हैं वो एपीएस है। कैन एपीएस एवर बी नेगेटिव, इफ एपीएस नेगेटिव होगा, कब एपीएस नेगेटिव होगा ना, एस बाई वाई ना, सेविंग जब नेगेटिव होगा, सेविंग नेगेटिव हो सकता है ना, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ एपीएस का वैल्यू क्या होगा, कैन बी नेगेटिव और 0 और मोर देन 0, ओके, कभी भी उसका वैल्यू 1 नहीं होगा कि ग्रेटर देन 1 नहीं होगा,
तो ये हो सकता है कब होगा ना, जब सेविंग नेगेटिव होगा। जब सेविंग नेगेटिव, सेविंग नेगेटिव कब होगा ना, जब हुए कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम। ओके, तो थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज अगेन जस्ट I request you comment me, like me and subscribe me, and your comment is very essential for me. So watch the video till the end. Definitely you can get so much important informations, and this topic I have clarified properly. So uh, I am waiting for your comment. Okay, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर जो है थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जो केन्सियन थ्योरी अभी चल रहा है उसके ऊपर और एक पार्ट मिलाऊंगा। थैंक यू।